सारंगी जी भारत सरकार में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के राज्य मंत्री पद को संभाल चुके हैं। वह बालसोर उड़ीसा से ताल्लुकात रखते हैं। साथ ही उन्होंने उड़ीसा विधानसभा से 2 बार अपनी जीत हासिल की है। दोनों बार नीलागिरी निर्वाचन क्षेत्र से जनता ने उन्हें सेवा करने का मौका दिया। आयु महज एक संख्या है, इस बात को उन्होंने सिद्ध कर दिखाया। प्रताप चंद्र सारंगी जी ने देश और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हर घर तिरंगा अभियान में भी इन्होंने अपनी भागीदारी दिखाई है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए लाल किला से विजय चौक तक बाइक रैली में शामिल हुए। ऋषि जागरण आपके इस जज्बे को सलाम करता है। And I also request Abha ma'am to please come and give sir a token of gift from KJ family side. Dinesh Kumar sir to please come, and I request Neha to please come and give sir a token of gift from our side. Now I request Suresh Singh sir to please come, and I request Nisha to please come and give sir a token of gift. को आपके प्रति और भी मजबूत बनाने के लिए ऋषि जागरण की ओर से एक छोटी सी वीडियो। What started with the launch of a single magazine 26 years ago, today is considered one of India's most respected and diversified agri-media companies. Krishi Jagran, for its years of consistent coverage on agriculture and that too in various languages, has managed to gain a place in Limca Book of Records for the largest multilingual agri-rural magazine. Published in almost 12 languages with a combined readership of nearly 15 million. Yes, you have heard that right, and that's just the beginning. Krishi Jagran today is also named to reckon with when it comes to social media platforms. Viewership is hitting crores every month, and with ever-increasing subscribers thanks to our farmers and followers. Working primarily on building farmer trust has helped Krishi Jagran reach the pinnacle where it is today, and it is just growing and going higher and higher. With 12 YouTube channels in its media bucket and 8 lakh plus daily visitors on its portals, Krishi Jagran is taking every bit of info to farmers and trying to make agri-media self-sufficient, so that when we speak, everyone does take a note. For that, Krishi Jagran also has a wide portfolio to help farmers, from Farmer the Brand to Farmer First, from FTP Organic to Tractor News, from everyone's favorite and top of the town KJ Chopal, wherein we bring eminent personalities and talk about the business scenario. Last but not the least, Farmer the Journalist. As the name says, we are making Farmer the Journalist, giving them the lifetime opportunity of sharing their reports from their village via videos and stories using their mobile phones.
More than 200 farmers have already been trained as journalists. Mr. MC Dominic, the man behind Krishi Jagran and every initiative that you have heard and seen till now. From him, all this wasn't enough, so he went on to create AJAY, Agriculture Journalists Association of India. Lately, none other than Honourable Minister Purushottam Rupala unveiled its official emblem amidst the top dignitaries joining the launch physically and virtually. Not to miss was the President of International Federation of Agricultural Journalists, Lena Johnson, who to attend the launch and unveil AJAY's official site. Mr. MC Dominic and his team are leaving no stone unturned to help farmers reach their voice to every nook and corner of the nation, including government offices. In one line, Krishi Jagran is out to empower farmers for a greener future ahead. टूटे हुए घर को निहारते, सरकारी हैंडपंप पर नहाते, दातुन लेकर लौटते, बच्चों के साथ खेलते, कभी साइकिल चलाते तो कभी मंदिर के बाहर बैठकर साधना करते। ये श्वेत वस्त्रधारी शख्स हैं वर्तमान सांसद और पूर्व राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी। सियासत के सबसे निस्वार्थ और निर्धन साधक के रूप में जाने जाते हैं प्रताप चंद्र सारंगी। किसी भी प्लेटफॉर्म के पन्ने को पलटिए, राजनीति में सादगी का प्रतिबिंब है प्रताप चंद्र सारंगी। धनविहीन राजनीति के ब्रांड एम्बेसडर माने जाते हैं प्रताप चंद्र सारंगी। दौलत की दीवार को गरीबी और ईमानदारी प्रताप चंद्र सारंगी, जो साल 2019 से 2021 तक पीएम मोदी की कैबिनेट में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन राज्य मंत्री रह चुके हैं। 67 वर्षीय प्रताप चंद्र सारंगी का जन्म वैसे तो 4 जनवरी साल 1955 को उड़ीसा के बालासोर जिले के नीलगिरी के गोपीनाथपुर गांव में हुआ है। सारंगी जी ने स्थानीय फकीर मोहन कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। बचपन से ही प्रताप सारंगी बहुत आध्यात्मिक रहे हैं। वे समाज सेवक के रूप में कार्य करते हैं। बालासोर और मयूरभंज के आदिवासी इलाकों में इन्होंने कई स्कूल भी बनवाए हैं। उड़ीसा और संस्कृत समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रताप चंद्र सारंगी का विशेष योगदान रहा है। दर्शन शास्त्र, विश्व मामले, विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत से संबंधित पुस्तकों और लेखों को पढ़ने में उनकी विशेष रुचि रही है। सारंगी आज भी कुटिया में रहते हैं और आने जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, और कहा तो यह भी जाता है कि वे कभी कभी पार्लियामेंट में जाने के लिए भी साइकिल का इस्तेमाल किया करते थे। तो वही सारंगी पेंशन की राशि गरीब बच्चों के लिए दान में दे दिया करते हैं। 67 साल के हो चुके प्रताप सारंगी ने कभी साधु बनने की कोशिश की थी। वह एकांत जीवन बिताना चाहते थे, लेकिन उनका समाज के प्रति समर्पण और जनसेवा का भाव उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में ले आया। प्रताप चंद्र सारंगी लंबे समय तक आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने उड़ीसा की बालासोर संसदीय सीट से बीजेपी यानी कि बीजू जनता दल के प्रत्याशी रविंद्र कुमार जेना को 12,956 मतों से हराया है। अब सिर्फ ओडिशा ही नहीं बल्कि पूरा देश उनकी सादगी का दीवाना बन चुका है। और सांसद बनने से पहले प्रताप चंद्र सारंगी ओडिशा की नीलगिरी विधानसभा सीट से साल 2014 और साल 2009 में विधायक भी रह चुके हैं। प्रताप चंद्र सारंगी लगातार समाज सेवा में लगे रहते हैं। वे 2 बार ओडिशा विधानसभा के लिए चुने जा चुके हैं। तो वहीं ओडिशा में उन्हें प्यार से नाना के नाम से भी पुकारा जाता है। कृषि और शिक्षा पर ध्यान देना, टूरिज्म को बढ़ावा देना, बेरोजगारी की समस्या से निपटना सारंगी का प्राथमिक एजेंडा है। आज के दौर में जब राजनीति करोड़ों खर्च कर अरबों कमाने का जरिया बन चुकी है, वहीं प्रताप सारंगी
राजनीति में सादगी की प्रतिमूर्ति बन गए हैं। प्रताप सारंगी अपना बड़ा सा मकान, गाड़ी या फिर पुलिस फोर्स जैसे तमाम तामझाम से दूर रहते हैं। चेहरे पर सफेद दाढ़ी, कम बाल, साइकिल और बैग उनकी पहचान है। प्रताप चंद्र सारंगी एकदम साधारण कपड़े पहनते हैं और वे आज भी ग्राम पंचायत के हेडपंप पर स्नान करते हैं। सारंगी अक्सर कहते हैं, मेरा जीवन बचपन से ही ऐसा है। भले ही मैं सांसद और मंत्री क्यों न बन गया हूँ, लेकिन मैं बदलने वाला नहीं हूँ। मैं लोगों के लिए जीवित हूँ और मैं अपने इस सिद्धांत पर जीवन भर कायम रहूंगा। और आज आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के तहत कृषि जागरण में मौजूद हैं फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर प्रताप चंद्र सारंगी। सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं चाहूंगी कृषि जागरण और एग्रीकल्चर वर्ल्ड के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ एमसी डोमिनिक सर स्टेज पर आए और अपना आभार प्रकट करें। How very seldom see a man with courage to speak the truth everywhere, whether it is at home, in public, or anywhere. I just experienced it a few minutes back when he told a young boy, it is not good to smoke, and he made him to drop his cigarette there itself. After that, I was hearing his stories, though I had been reading about him, because he had been always an inspiration for simplicity for me. When I see, जब हम लोग काम करते हैं, हमें मालूम है हम किसानों के लिए काम करते हैं, सो कितनी तकलीफ होते हैं। हमें मालूम है कभी हमें रेलवे टिकट नहीं मिलते, कैसे हमारा टीम मुझे मालूम है दूर दूर जाते हैं। हमें मालूम है जब हम कई बाथरूम में भी बैठ के गए हमारा काम करने के लिए, तब तक मैं देख रहा था सर ने कितनी सैक्रिफाइस किया उनकी वो प्रिंसिपल होल्ड करके आगे बढ़ने के लिए। मुझे नहीं लग रहा इंडिया में ऐसे कोई लीडर होंगे अभी। नो डाउट देयर विल नॉट बी एनीवन टू बी दैट स्ट्रॉन्ग। हमने कुछ अभी ये वीडियो में देखा, दिस इज ओनली अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग। आई टेल यू सच ए ह्यूज work he has done, and he stood for his principle every time in his life. Whatever maybe the challenges came to him, nothing would defeat him. He was always strong on his conviction. That's what makes the young generation, I think, to think of and emulate and work on that. मैं आज ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। हम पिछले बहुत दिनों से सर के बारे में बात कर रहा था, सोच रहा था, डिस्कस कर रहा था। हमें बहुत इंस्पिरेशन हमें खुद मिल रहा था। मैं चाहता हूँ हम थोड़ा टाइम सर से बात करो। अभी 5-10 मिनट हम नीचे बैठ रहा था, हमें इतनी जानकारी सर ने दी है, इतनी इंस्पायर किया है। हमें उम्मीद है सर का आज का विजिट एनकरेजमेंट हमें ज़्यादा एक इंस्पिरेशन देके आगे बढ़ने के लिए। सर प्लीज आपसे सुनना चाहता हूँ। ओम भद्रं कर्णैभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येमात् सेविर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवांसस्तनूभिः विवेशेम देवहितं यदायु। ओम शांति शांति। रत्नाकराधौतपदा हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजशिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। बोलो भारत माता की जय। कृषि जागरण के प्रतिष्ठाता डोमिनिक जी, आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमिनिक, और जितने सारे कार्यकर्ता, सारे कृष्ण महासागर जैसा विद्यमान सब बहनों और भाइयों, मैं आप सबको अभिनंदन करता हूँ। सर ने भी बोला कि आई एम ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन।
But to me, I don't consider that I can inspire you, or rather I am inspired by your presence. This is a unique thing. You have got a single uniform. Today uniform के लिए विवाद चल रहा है, हिजाब पहनेंगे या पहनेंगे, क्या दिशाहीन fighting, purposeless wastage of time and energy. This life is very short, it should be properly utilized. So मुझे वह प्रेरणा मिलता है. हमारा वेद में बताएगा संगच्छतुम संवदन्तुम संगो मनांसि जानताम देवा आगम्यथा पूर्वे समजाना वाचा. इन्हीं हमारा आचार समान हो, विचार समान हो, उच्चार भी समान हो, करुणा मनसा वाचा, ये समानता ही हमको समृद्धि दे देगी. ऐसा देवता लोगों को मिला, देवता लोग. इसलिए ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर में एकात्मता के अभाव के कारण हिंदुस्तान का पराजय हुआ. 2000 साल तक ग्रीक से लेकर के अंग्रेज तक हमको पराधीनता का स्वाद मिला. इसलिए पहली बात है हमारे अंदर में एकता. एकता क्या होता है? एकता कोई शारीरिक दृष्टि से हम एक हो जाएंगे नहीं, बौद्धिक दृष्टि से सब समर्थ हो जाएंगे, एक हो जाएंगे नहीं. Intellectually, physically, mentally, there will be different always, but there is an underlying unity. And what is that? Substantially we are one. सोच में समानता, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम. कि देखो, एक रेने डेकार्ट करके एक जर्मन साइंटिस्ट है, वो फिलोसोफर भी, जूलॉजिस्ट भी, मैथमेटिशियन भी, ऑलराउंडर. इन्होंने एक किताब में लिखा, I can doubt the existence of my school building. It may be an illusion. I can doubt the existence of my residential building. I can doubt the existence of the hospitals. I can doubt the existence of this physical universe, but I cannot doubt myself. The doubting self can never be doubted. प्रश्न पूछने, सवाल पूछने वालों को संदेह नहीं किया जा सकता. इसलिए हमारे अंदर भी सवाल पूछने वाला जो है, इसमें समान. ये कौन है? ये हम सब में एक वेदांत में एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक सिद्धांतों को हजारों साल पहले प्रतिपादन किया. एक जर्मन फिजिसिस्ट, नोबेल लॉरेट इन फिजिक्स, डॉक्टर जन हॉफसन, इन्होंने एक किताब में लिखा, इट वाज स्वामी विवेकानंद who has thrown a challenge to modern science when he asked, can you equate matter and energy? And the challenge was answered by Albert Einstein after 3 years of his passing away. स्वामी विवेकानंद अमेरिका में 1893 and 94 में जब वेदांत के ऊपर क्लास कर रहे थे, कभी कभी वैज्ञानिकों ने आकर के इस क्लास में बैठ जाते. एक साइंटिस्टों का सेशन चल रहा था. विवेकानंद ने पूछा, व्हाट डू यू वेस्ट योर टाइम सिटिंग हियर without going to a laboratory? One young scientist replied promptly, Swamiji, is it wastage of time to listen to Swami Vivekananda? Today we have discovered the truths which modern science is yet to discover, has been discovered by Indian sages ages ago. This is a benefit in coming to a lecture class. The basic point where we differ. Swami Vivekananda told, your knowledge is incomplete. You scientists could not reach unity because by that time theory of relativity was not discovered. Your entire dissolution process halted on 2 points, energy and mass. You could not proceed further. And the goal of all knowledge, all research, all learning is to discover the unity of human experiences. Unification of human experiences. You have not reached yet. But our sages have discovered this unity. After energy and mass, they proceeded and the cosmic intelligence came in the middle. And how he discovered how from the lowest atom to the highest Brahman, everything is interconnected. Man is a part of the family, family is a part of the society, society is a part of the nation, nation is a part of world, world is a part of universe, and universe is a manifestation of Prakriti, and Prakriti is a shadow of Brahman. So, by hurting you, I hurt myself. I cannot injure anybody without injuring myself. Why should I serve others? Why should I serve the farmers? Why should I serve the poor? Is there any logic about it? Is there any reasoning? Is there any rationality? Yes. Normal people will say, because we are all sons and daughters of God, so we are sisters and brothers, so we should serve each other. This is a very weak logic. It can take you a little ahead, but it cannot proceed further. In the taste of science and reasoning, if you want to qualify, you should have to find out a better logic. And what is that? Because you and I are not different. I am not similar to you. I am not brother to you. I and you are one.
There is only one existence. We are different in name and form, in physical and intelligence. Otherwise, the basic substance is one. That our races have told self. Gradually, English literature discovered a word soul, and our forefathers told it Atma. So, we are spiritually one. There cannot be crores of souls. There is only one self. And suppose in a water pot, you put several gas jars upside down, then what happens? You will find that the water is separated by these small glass pots. You break the glass pillars and the water is one. So this is the unity. This Vedantic unity only can stop the war and all sort of violences. Now, हमारे देश में क्या होता है? हमारे देश में ज्यादातर लोग कृषक होते हैं। पहले तो कृषक थे, इसका संख्या धीरे धीरे घटता जाता है। ये देश का बर्बादी का कारण है। और आज सब लोग उपभोग करेंगे, उत्पादन नहीं करेंगे। और इसके कारण क्या होता है? हमारे देश में जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, तो पाकिस्तान का आक्रमण हुआ। शास्त्री जी तब उस समय में क्या होता है, 50% विदेशी ग्रेन आता था अमेरिका से। अगर अमेरिका ग्रेन सप्लाई बंद कर देगा, गेहूं सप्लाई बंद कर देगा, हिंदुस्तान में लोग मर जाएंगे। तो ये इतना अनामनीय पुरुष थे। युद्ध के लिए पूरा तैयार किया, सारा डिपार्टमेंट का पैसा को स्क्वीज कर दिया करके युद्ध के लिए पूरा चल पड़ा। अमेरिका इसको बंद करने के लिए हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डालता रहा। शास्त्री जी सुने नहीं। शास्त्री जी लोगों, कांग्रेस सिंडिकेट उनको पूछा, युद्ध के लिए पैसा कहां से आएगा? देशवासियों से आएगा। उन्होंने ठीक है, अगर सारा देशवासी को उन्होंने निवेदन किया, सप्ताह में एक दिन तुमको भूखा रहना है, उपवास करना है, इसमें तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, स्टोमक को रेस्ट मिलेगा, और मैं उपवास करता हूं। हिंदुस्तान में लाखों लोग, मैं भी कुछ लोगों को जानता हूं मेरे रहने से, जो शंकर व्रत, शिव व्रत नहीं, शास्त्रीय व्रत के लिए उपवास किया देश के लिए। 50 करोड़ लोग तब थे, 50 करोड़ लोगों का एक दिन का खाना सरप्लस हो जाएगा। नंबर 2, हर रविवार को उन्होंने देश के किसानों को भारत का कृषि में वैप्लविक परिवर्तन करने के लिए रेडियो में भाषण दिया। कृषि में भारत को आत्मनिर्भर करने का सपना उस समय में एक प्रधानमंत्री ने देखा और देशवासियों को निवेदन किया, अपना वेश संकोच करो। उन्होंने खुद क्या किया? युद्ध के पांठी को दान करने के लिए अपना खर्च कमाना शुरू किया। पहला अपना जो बेटा का ट्यूशन मास्टर था उनको छुट्टी कर दी। बोला बेटा का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, हिंदुस्तान में करोड़ों बेटा का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री कोई एक्सेप्शन नहीं है। बोले जो रसोई करने वाली उनको छुट्टी कर दी। कुछ दिनों में भारत को विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन शास्त्री को संभवतः चल प्रपंच के द्वारा ताशकंद में मार दिया गया। ये मेरा संदेह विश्व में करोड़ों लोगों का हिस्सा है। अपना खुद अपना जो पार्टी का आदमी थी उनको अच्छा नजर से नहीं देखते थे। और आज भारत का माथा ऊंचा करने वाला हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, जिनको अमेरिका ने वीजा बंद कर दिया था, झुक गया। और अमेरिका का प्रेसिडेंट हमने देखा गर्व के साथ, वो मोदी जी भाषण दे रहे हैं और ट्रंप उनके पैर के नीचे बैठ करके भाषण सुन रहा है घंटों तक। और ये मोदी प्रोग्राम, ये अब इतिहास करपत्र बदलता है। इस संदिग्ध क्षण में हमको बहुत कुछ करना है और हम आप बैठे हैं जब हिंदुस्तान आजादी का अमृत महोत्सव पालन करने जा रहा है। हिंदुस्तान का सारा विश्व का अन्नदाता कौन है? किसान ही अन्नदाता है। किसान का सम्मान रक्षा करना हम सबका जिम्मेदारी। ठीक है, जिस स्कूल में हमने पढ़े हैं, जिस कॉलेज में हमने पढ़े हैं, ये भवन जो हम कर बैठे हैं आज, इसको किसने बनाया? हम नहीं बनाया। ये माइक मैंने नहीं बनाया, ये शर्ट मैंने नहीं बनाया, एक गरीब किसान मजदूर हमारे लिए खाली से बनाया। उनके लिए हमको कुछ जिम्मेदारी है। जब हम आपेल खाते हैं, जब हम राइस खाते हैं, जब रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, हमको ये सोचना चाहिए किसने इसको बनाया। इनके प्रति एक विनम्र कृतज्ञता का भाव हमारे अंदर आना चाहिए। हमने उसके लिए क्या किया? स्वामी विवेकानंद कहते थे, so long as millions live in hunger and poverty, I hold every man a traitor, having been educated at the expense of the billions, does not pay heed to them.
दरिद्र करदाताओं के पैसा से पाठ पढ़ करके जो उनकी उन्नति के लिए सोचता नहीं, चिंता करता नहीं, काम नहीं करता, मैं उनको बेईमान करता, देशद्रोही मानता। ये हमको विचार करना चाहिए, ये हमारा एक जिम्मेदारी। मुझे कल शाम को दिनेश भाई ने बोला एक निमंत्रण आया है, आपको जाकर के कोई तिरंगा फ्लैग को फ्लैग अप करना है। रात को सुबह का फिल्म बोल के वो मैंने बोला मैं अभी प्रेसिडेंट के क्या बात है, नहीं वो कल आना है, क्या प्रोग्राम है, बताया नहीं बताओ क्या प्रोग्राम है। 9 बजे तो तिरंगा रैली को फ्लैग अप करना है। बोला नहीं ऐसा नहीं, लेकिन इस चिट्ठी में बाद में रात को मैं आकर के देखा इसमें एक तिरंगा वाला है, उन्होंने इसको पकड़ लिया, बाकी अननोटिस चला गया। इसलिए आपको भी कभी कभी क्या होता है, हमारा देश में पकड़ लिया एक विषय को कि हमको खाद्याभाव था, अमेरिका ने बोल दिया कि हम इसको अगर तुम पाकिस्तान के साथ समझौता नहीं करते हो तो हम इसको हमारा जो ट्रीटी है इसको रद्द करते हैं। शास्त्री जी बोले पहले से इसको रद्द कर देते हैं, हम आपके ऊपर भरोसा नहीं करते। इतना हिम्मत, लोगों ने बोला अरे ये देश को भूखा मार डालेगा, उनका अपना सिंडिकेट बोलने लगे। लेकिन शास्त्री जी ने भारत की शाणित पौरुष का निदर्शन दिया और तो देश पकड़ लिया। श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन का बात आया, देश तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गए। व्यापक मात्रा में रासायनिक सार और कीटनाशक का प्रयोग करने के कारण हमारा भूमि बंजर होती है और खाद्यान्न में इतना विषाक्त तत्व आ गया कि डिजीज आज पूरे देश में पंजाब को लोग आदर्श मानते हैं, ज्यादा रासायनिक सार का प्रयोग करता है, ज्यादा खाद का प्रयोग करता है। लेकिन पंजाब कैंसर में भी नंबर 1 और पंजाब में एक ट्रेन का नाम है कैंसर ट्रेन। इसके लिए विकास का अर्थ क्या होता है? विकास, अभी कभी विनाश को भी हम विकास का मापदंड मान लेते हैं। सपोज आपने 10 लाख पेड़ कटवा दिया, आप बोलते हैं हम इतना 1000 टन टिम्बर का प्रोडक्शन किया। क्या तुमने प्रोडक्शन किया? तुमने तो जंगल को विनाश करके इस प्रोडक्शन। सपोज आप 10 लाख जानवर को कटवा दिया, इतना टन मांस का उत्पादन किया। अरे ये क्या बात है? प्रकृति को ध्वंस करके तो तुम नहीं कर सकते। टिम्बर कटवा दे, कितना पेड़ लगाया इसका तो कोई हिसाब नहीं दिया तुमने। परिवेश के ऊपर कितना बोझ लगा दिया। कोई रास्ता निर्माण होता है, कोई शौकीन सामग्री निर्माण करते हैं, कोई कारखाना बनता है, निर्दयता पूर्वक, क्रूरता पूर्वक, निष्ठुरता पूर्वक, बेदर्दी से कितना पेड़ों को हम काटते हैं। कभी सोचा है इसका क्या परिणाम निकला? ऐसा नहीं है, इसका विकल्प हमको सोचना चाहिए। हमारे शास्त्रों में क्या क्या वर्णन है। आज परिवेश विज्ञान जितना आगे गया, इससे कई आगे। हमारा वेद का वक्ताओं ने क्या था, हमारा अथर्ववेद में भूमि सूक्त वगैरह सारा परिवेश के ऊपर है। क्योंकि ये वेदांतिक वननेस ऑफ द यूनिवर्स एंड डिविनिटी ऑफ मैन, ये प्रिंसिपल के कारण उन्होंने सोचा एक पेड़ को भी कष्ट देना हमारे अधिकार उनके पास नहीं है। आचार्य जगदीश चंद्र बसु एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक, 150 साल पहले कंप्लीट वेस्टर्न वर्ल्ड को यह मालूम नहीं था कि पेड़ का जीवन है। आचार्य बसु ने, जगदीश बसु ने सारा पाश्चात्य विज्ञानी को ज्ञान दिया, किंतु हिंदुस्तान में हजारों साल से अनपढ़ आदमी को मालूम था कि पेड़ का जीवन है, सुख दुख है, पेड़ रोता है, पेड़ हंसता है, ये मालूम था। आश्चर्य की बात है, इतना बड़ा विज्ञान के वास पर मारने वाले अमेरिका यूरोप में ज्ञान नहीं। जगदीश बसु ने ये आविष्कार किया और सारा दुनिया को ज्ञान दिया। कोई वैज्ञानिक अगर कुछ आविष्कार करता है तो उसको सिद्ध करने के लिए उनको तर्कमूलक और परीक्षामूलक प्रमाण देना पड़ता है। आइंस्टाइन जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आविष्कार किया, उन्होंने सारा दुनिया को ये ज्ञान दिया। E = mc² की एनर्जी और मास दोनों अलग वस्तु नहीं है, एक वस्तु का अवस्थान्तर मात्र है। ये सारा दुनिया को 1000 मीटिंग, क्वेश्चन आंसर सेशन में इसका प्रमाण दिया। दुनिया ऑटोमेटिक एक्सेप्ट नहीं करता। जगदीश बसु ने इतना कॉन्फिडेंट थे, कई सवाल में जाकर के उनको प्रमाणित किया। एक स्थान में वैज्ञानिकों में कितना कुसंस्कार है हम नहीं जानते हैं। One कुसंस्कार in the name of religion, one कुसंस्कार in the name of science. And we take, when foreigners say yes, we take it as Brahma Gyan. This is the measurable plight of India. And जगदीश बसु ने जाकर के परीक्षा किया, हजारों सैकड़ों वैज्ञानिक बैठे हैं। जगदीश बसु का एक्सपेरिमेंट था, एक छोटा सा पेड़ को लाएगा, पौधा को, इसमें एक विषाक्त पानी में विष, लेकिन दिखाई देगा कैसे, इसलिए इसको कलर कर दिया गया।
तो एक पेड़ का छोटा सा अंश काट दिया और इसमें इंजेक्ट करेंगे टब में, ये पानी धीरे धीरे जाएगा, कटा हुआ अंश में पानी का नीचे जाने का दिखाई देगा। जब ये इनका चेर को ग्रास करेगा तब पेड़ मर जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने भाषण दिया तब तो समझा दिया, थ्योरेटिकल क्लास हो गया। जब परीक्षा आया तो इन्होंने इंजेक्ट किया, पानी किया, चेर को पहुंचा, लेकिन पेड़ को कुछ नहीं हुआ। तो वैज्ञानिक हंसने लगे। जगदीश बसु मूल तथ्य देते हैं, ऐसा कहते हुए वैज्ञानिक हंसने लगे। जल्दी उसको दुख हुआ, ये कैसा हो सकता है, पूरा पानी को लेकर के विष पानी को पी लिया। एंड emphatically told, if this plant can digest poison, then Jagdish Basu can digest poison. He was so confident about the experiment. वैज्ञानिकों में हाहाकार हो गया, जगदीश बसु आज मर जाएंगे, विश्व का इतना बड़ा वैज्ञानिक। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, एक रूपांतरण हुआ, एक हृदय का परिवर्तन हो गया। जिस दुष्टों ने ये काम किया था वैज्ञानिक, वो आगे आया। जगदीश उसका पैर पकड़ा, मुझे माफ कर दो, गलती मैंने किया था। वो सारा विष को हड़प करके सादा पानी रख दिया था। फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट हुआ और पेड़ मारा। ऐसा जगदीश ने किया। हमारा अनपढ़ किसानों को ये मालूम था, इसलिए उन्होंने क्या करते थे, कृषि हमारे लिए कोई इंडस्ट्री नहीं है, कृषि हमारे लिए कोई व्यापार नहीं है, कृषि हमारा संस्कृति है, कृषि हमारे लिए यज्ञ है, भूमि पूजन है। वो भूमाता को पूजा करके कृषि का प्रारंभ करते थे, यज्ञ करके कृषि का प्रारंभ करते थे। सारा प्रकृति का शक्ति को आवाहन करते थे कि देखो मैं एक पवित्र कार्य करता हूं, इसलिए आहुति देता हूं। ये पवित्र कार्य क्या है, ये भूमाता से अन्न उत्पादन में करता हूं। और ये पवित्र कार्य राष्ट्र को अन्न देने के लिए, करोड़ों लोगों के मुख में अन्न देने के लिए। कोई व्यापार करके पैसा उपार्जन नहीं है, पैसा तो मिलेगा, लेकिन ये ध्येय नहीं होता। मनुष्य को खाद्य चाहिए, मनुष्य को पैसा चाहिए, लेकिन ये जीवन का ध्येय नहीं माना जाता है। ये आवश्यकता है, उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य एक महत्तर चेतना का विकास। और मुझे इस पवित्र कार्य में देवताओं का आशीर्वाद चाहिए, यानी सूर्य भगवान का आशीर्वाद चाहिए, वरुण भगवान का आशीर्वाद चाहिए, इंद्र भगवान का आशीर्वाद, यानी वर्षा ठीक समय में हो, यानी पानी ठीक स्थान पर पहुंचे और सूर्य किरण ठीक मात्रा में आए। इसलिए मुझे क्या करना है, प्रकृति का संतुलन बनाए रखना है। इसलिए मुझे पेड़ अनावश्यक नहीं काटना है, मुझे यज्ञ करके यज्ञ धूम से वृष्टि को निमंत्रण करना है। आज इसको कुसंस्कार कुछ मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक नहीं मानेंगे। आज ये प्रमाण सिद्ध हो गया है कि यज्ञ कृषि का आधार था। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में बोला, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भव, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्, एवं प्रवर्तितं चक्रम नाम वर्तयति हया अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवन। अर्थात है पार्थ, प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न से देह धारण करते हैं। अन्न यानी राइस नहीं, अन्न यानी समस्त प्रकार खाद्य, सस्य फलादि अन्न। अन्न कैसे होता है, अन्न पर्जन्य यानी मेघ से, वर्षा से, वृष्टि से होता है, नहीं तो अन्न नहीं होगा बिना वृष्टि से, पानी से। अन्नात् भवन्ति पर्जन्य। तो भगवान कहते हैं अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्य। तो मैं कैसे होता है, यज्ञात्। आज वैज्ञानिकों ने इसको साबित किया। डॉक्टर जूलियस, डॉक्टर ब्रूक करके दो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट ने इन्होंने प्रमाण किया कि जब अग्नि में जौ, चावल, घृत को लेकर के आहुति देते हैं तो 3 प्रकार का गैस उत्पन्न होता है। इसमें कोई संस्कार की बात नहीं है। और मंत्र का भी एक प्रभाव होता है। आप मंत्र को भी अस्वीकार नहीं कर सकते। अगर आपको मैं गाली दूं तो आप मुझे क्या करेंगे, मारोगे, कितना अभद्र है आदमी। आपको मैं प्रेम पूर्वक संभाषण करूं, आपका हृदय में पुलक आ जाएगा। वैसा ही सारा प्रकृति में अगर आप डीजे बजे करके जाएंगे, इधर पाठ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, अपना शादी में डीजे बजा करके सैकड़ों लोगों को बीमार कर देते हैं, साउंड पोल्यूशन करते हैं। ये तो एक इररेस्पॉन्सिबल वर्क होता है। इसलिए ये भी ये प्राकृतिक शक्ति का आवाहन। आज का देवता कहीं ना कहीं अलग बात है, लेकिन देवता मुझे लगता है, हम किसको देवता कहते हैं, जो बिना स्वार्थ केवल देता है। सूर्य भगवान किरण देते हैं, इलेक्ट्रिक वालों के जैसा अगर बिल भेज देते हैं तो उनको देवता नहीं मानते। नदी माता पानी देता है, समुद्र पानी देता है। अगर ये RWSS PhD वालों के लिए अगर वाटर टैक्स भेजता है तो बिल देता है, तो आपको देवता नहीं मानते। लेकिन इन सब उत्सव को प्रदूषण करने वाला कौन है? इस विश्व में जितने जानवर है, कोई कोल्ड ब्लडेड मर्डर नहीं करता है।
आवश्यकता पड़ने पर ही करते हैं। सिंह भी, अगर सिंह भूखा नहीं है, उनको आपसे कोई विपद नहीं है, तो आपको मारेगा नहीं। बाघ भी नहीं मारेगा, सांप भी नहीं डसेगा। बिना कारण मरने वाला सिर्फ पृथ्वी की श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है। इसलिए सारा दुनिया को ध्वंस करने वाला मनुष्य, जो दुनिया का गार्डियन बनना चाहिए, ये दुनिया का विनाशकारी होना है। इसलिए मनुष्यों में मनुष्यता पैदा करना सबसे बड़ी आशा है। वी आर वीस्ट इन ह्यूमन फॉर्म मोस्टली। तो ये कैसे क्या होता है? 3 प्रकार के गैस होते हैं। वो क्या है? एक है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइहाइड भी कहते हैं। जैसे हॉस्पिटल में कोई ऑपरेशन होगा तो पहले क्या किया जाएगा? इन्फेक्शन नहीं हो इसलिए विशोधन किया जाएगा सारा इंस्ट्रूमेंट को, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। इथोलिन ऑक्साइड और प्रोपिलीन ऑक्साइड, हमारा काम प्रोपिलीन ऑक्साइड से। ये गैस है, प्रोपिलीन ऑक्साइड पर्याप्त मात्रा में होता है, जो जल कणा को खींच करके आकाश से नीचे ले आता है। वृष्टि का ही रहस्य। आप अगर 1 किलो हवन कर दोगे और बोलेगे क्यों वर्षा नहीं हुआ, ऐसा नहीं। जितनी आवश्यकता पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, आवश्यक सामग्री देना चाहिए, उत्तम मंत्र का व्यवहार करना चाहिए, तो इससे वर्षा अवश्य होगा। वैज्ञानिक रीति से प्रमाणित हो चुका है, सही 100 बार प्रमाणित हो चुका है। आज भी ऐसा है कि जो करके दिखाएगा। मैं भी जो विधानसभा में था, हमारा पार्टी का रेवेन्यू मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, एक अकाल पड़ा, हाहाकार हो गया। मैंने इनको निवेदन किया, मैं आपको ऐसा प्रमाण के साथ बता सकता हूँ, ऐसा भी है, आप एक काम करिए, इसको कुसंस्कार मत मानिए, यज्ञ का व्यवस्था है। वो सब हंसने लगे, प्रताप भाई क्या बोलते हैं, लेकिन क्या है, आप ये भी साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं है। किस विषय को विश्वास करना साइंटिफिक नहीं है, अविश्वास करना भी साइंटिफिक नहीं है। साइंस क्या है? यू मस्ट हैव ए क्रिटिकल इंक्वायरी, अनप्रेजुडिस्ड, अनबायस्ड, a critical approach to everything, and don't believe or don't disbelieve anything before observation and experiment. That is science. You must give up all your pet ideas. Our forefathers were very, very scientific in their approach to the old world. उन्होंने एक भूमि माता का, भूमि एक जैव संपदा है। भूमि अगर इनएनिमेट होता है तो इससे लाइफ का आविर्भाव कैसे होगा? ये वास्तविक जीवंत सत्ता है भूमि, और हम इसको मृत कर देते हैं। हम जितना रासायनिक खाद, विषय तत्व देते हैं, इससे मर जाते। मैं जब हमारा अलग क्वार्टर में था तब बहुत भूमि था, इसमें मैं जैविक कृषि करता था। एक ड्रॉप भी मैंने रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया, कीटनाशक भी नहीं किया। अब पूरा इतना सस्य होता था, इतना सारा सब्जी होता था, फल होता था, इसको मैं बांटता था। गोभी होता था, बैगन होता था, भिंडी होता था, झुडंग होता था, क्या क्या नहीं होता, साग कितने प्रकार का। और सब गांव से जो लोग आते थे भोजन करके बोलते तुम्हारा ये छोटा छोटा नाड़ी कितना स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि इसमें रासायनिक खाद नहीं है। तुम भी घर में करो, तुमको तो डर है मेरा उत्पादन कम जाएगा, कर देगा, और तुमको 20 मुफ्त में मिलेगा, इसको खा लोगे। और राइस का केजी 300 रुपया हो गया, फिर भी इसको खरीद करोगे। लेकिन गैमाक्सिन मुफ्त में मिलेगा, 10 रुपया और दक्षिणा देगा, तुमको नहीं करोगे। इसीलिए हमको भी इस विषय में सोचना चाहिए। और हमारा भारतीय संस्कृति ऋषि संस्कृति, कृषि संस्कृति, हमारे ऋषियों ने सारा दुनिया को कृषि सिखाया। बाकी तो सब जा होते हैं, बाकी सब इधर उधर पशुपालक चल देते हैं, लेकिन कृषि का जो ज्ञान भारत, और मुझे गर्व है कि जहाँ तक अध्ययन का निष्कर्ष अब तक धान का उत्पादन उड़ीसा से हुआ है और कोरापुट से। और मुझे और भी एक गर्व है, ये गर्व में कोई अहंकार नहीं है, मुझे आनंद है कि मैं भारतीय होने के नाते गर्वित हूँ। मैं उड़ीसा में पैदा होने के लिए जगन्नाथ भूमि में गर्वित हूँ, बालेश्वर में फकीरमोहन की भूमि में पैदा होने के नाते गर्वित हूँ, और नीलगिरी में पैदा हुआ इसलिए मैं बहुत गर्वित हूँ। क्योंकि हिंदुस्तान में अंग्रेज जाने के बाद हिंदुस्तान को 3 भाग में बांट दिया। 565 हमारे पेनिनसुलर स्टेट्स को अलग कर दिया, स्वाधीन कर दिया, आजाद दी थी। अगर एक बालेश्वर से अगर मयूरभंज जाएगा, एक फ्लाइट नहीं जा पाएगा, आकाश सीमा पर अधिकार है परमिशन देना। इसलिए ऐसा था, 565 आजाद थे। सरदार पटेल की, वो पाकिस्तान अलग था, भारत अलग था। सरदार पटेल की शिक्षण नेतृत्व के कारण ये सारा हिंदुस्तान में शामिल हो गया, नहीं तो बड़ा विभ्राट। INS नीलगिरी मुझे मुगल सम्राट से भी ज्यादा गर्व, लेकिन यह गर्व का कारण मैं नहीं, मेरा पूर्वजों क्या वीरता पुरुषार्थ के कारण में है। और हमारे पूर्वजों ने सारा दुनिया को ये जो खेती के बारे में शिक्षा दिया,
आज हम इसको अवहेलना करते हैं। देखो मॉडर्न आवश्यकता के अनुसार हम कुछ यांत्रिकीकरण को विरोध नहीं करते, लेकिन मूलभूत सिद्धांत है इसको हमने नकारा। मूलभूत सिद्धांत क्या है कि कृषि एक पवित्र कार्य है, हमारा संस्कृति। भूमि माता हमको यथार्थ उत्पादन देने के लिए तैयार है। हम सपोज हमें बीज क्या हम इसको करते हैं, कोई लोहे का वेल्डिंग करता है, इसको सेटिंग देता है, इसके ऊपर निकलिंग करता है, कितना परिश्रम इंडस्ट्री में, लेकिन इसमें हम करते हैं। एक बीज से हजारों फल होता है और इसको भूमि माता की कृपा से, प्रकृति की कृपा से हमको मिलता है। एक सरसों की दाना लगा दो, 500 सरसों एक बीज से आएगा। किसने दिया? प्रकृति ने दिया। हमने प्रकृति का ये दान को स्वीकार नहीं करता है, ये बहुत बड़ा गलती है। इसलिए भूमि को विष देना महापाप। भूमि को रासायनिक पद्धति से नहीं, प्राकृतिक पद्धति से हम दे सकते हैं। किसान का दुगुनी करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने बताया, किसान का बहुगुणित भी किया जा सकता है। हमारा सैद्धांतिक परिवर्तन और व्यावहारिक परिवर्तन दोनों चाहिए। पहले तो तत्वतः हमको मानना चाहिए कि प्रकृति भूमि माता देने का सामर्थ्य रखती है, परंतु उसको मार डालेंगे, सोने का अंडा देने वाला मुर्गी को मार देंगे तो प्रतिदिन अंडा नहीं मिलेगा। इसलिए प्रकृति का एक्सप्लॉयटेशन हमने कर दिया, जिसको बंद करना चाहिए। 100% जैविक और प्राकृतिक खेती करनी चाहिए जहां संभव। अब एक गाय कैसे करेंगे? एक गाय से भी 25 गाय का खाद हम उत्पन्न कर सकते। पहले सिद्धांत करेंगे गाय बैल सैंड किसी को कतल खाना नहीं भेजेंगे, नहीं बेचेंगे। आप कहेंगे हम तो पालन नहीं कर सकते। कौन पालता है गाय को? गाय हमको पालती है। गाय को हम नहीं पालते। अगर नहीं संभाल सकते तो गौशाला में छोड़ दो, जंगल को छोड़ दो। देखो एक गाय से, बुढ़ा गाय से, बुढ़ी गाय से आप प्रति वर्ष 50,000 से कम रुपया नहीं कमाएंगे। उनका गोबर से आप मैंने सपोज नाडेम काका की कंपोस्ट अब बनाओगे गोबर से। कोई टेक्नोलॉजी जरूर नहीं, थोड़ा सा एक 4-5 और जना लेकर के उसमें डालो, फिर दोबारा एक 1:5 रेशियो, ऐसा करते करते 7% बना दो। इसमें आप पानी में जो होने वाला बुर्जोजी सबको दे सकते हो, इसके ऊपर लिप दो गोबर से, पंख भी दे सकते हो। और 3 महीने के बाद इसको निकालो, जितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जितना खाद्यान्न मिलेगा, पोषक तत्व मिलेगा, इसका कीमत 50,000 से ज्यादा। वो दूध देने वाला, दूध क्या होता है? दूध गाय का बाई प्रोडक्ट होता है, 300% दिन दूध नहीं देती, लेकिन गाय गोमूत्र मिलता है। अच्छा, इसका अगर आप ग्यास करोगे तो आप क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर भी घट जाएगा। ये चूल्हा जलेगा, रसोई होगा, लाइट जलेगा, फैन भी घूरेगा, ये अपना घर का आवश्यकता पूर्ण हो जाएगा। आपको निर्दोष ईंधन मिले। किसानों का खर्च कमाना और आय बढ़ाना, तो किसान का खर्च कैसे होता है? वो आज तो देसी बीज नहीं मिलता है, हमें बीज उत्पन्न पहले से, हमारा बचपन में किसान घर में सब करता था, ककड़ी, टमाटो, सब धान सब घर में होता था। लेकिन आज कंपनी से खरीदता है और केजी 50,000, 45,000, 35,000, 20,000, इतना चढ़ा दाम है। रासायनिक खाद और कीटनाशक खरीदता है, और खाद भी घर में करेगा। जैसे नाड़े पद्धति, ऐसा अमृत पानी है, ऐसे कई प्रकार का है। ऐसे जो गैस उत्पन्न करता है, इसमें जो स्लरी निकलता है, ये अच्छा पोषक तत्व भरा खाद है। इसको 2 साइड कर दो, इसका जो सॉलिड अंश को निकालो और जो लिक्विड अंश को, इसको अमृत पानी बना दो। थोड़ा घी, महू दे करके इसको बहुत अच्छा बनेगा। और गाय का सिंग से बायोडायनामिक्स पद्धति से एक चमत्कार खाद बनता है। एक गाय का 2 सिंग, गाय बचने वाली गाय का नहीं, मरने वाली गाय का सिंग को ले आओ। ऐसा गाय बैल का सिंग को ला करके, ऐसा ईटा में कुंड बना करके, गोबर दे करके इसमें गाड़ दो। 6 महीने के अंदर इसको निकालो। वैशाख और कार्तिक के बीच में इसको करने से अच्छा फल मिलेगा। और इसका जो अंदर में जो तत्व है, इसको निकालो। निकाल करके इसको एक शीशा की बोतल में रख दो और इसको 1500 लीटर पानी में मिला करके 1 एकड़ भूमि में स्प्रेड करो। परीक्षा करके देखो, कोई मेन्योर जरूरी नहीं है, इसका इतना प्रभाव होगा, 1 एकड़ जमीन को ही पर्याप्त होगा। इसको बायोडायनामिक सिस्टम, ऐसा कई प्रकार के। जो पराली, आज तो पराली को नडा के रूप में छत के ऊपर व्यवहार नहीं करते हैं, इसको यांत्रिक पद्धति से निकालने का यूजलेस हो जाता है, इसको जला देते हैं, कितना प्रदूषण होता है।
और पराली के लिए दिल्ली में कितना हवा चलता है। इस पराली का सबसे बेस्ट सदुपयोग हम कर सकते हैं। पराली को लेकर के गोबर के साथ पानी में मिला करके इसको नाड़े पद्धति में कर दो, इतना अच्छा खाद बनेगा। और इसमें पावर जनरेट हम कर सकते हैं, पावर भी जनरेट होगा, गांव को बिजली मिलेगा बिन पैसा, और बढ़िया खाद मिलेगा, और स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार मिलेगा। इससे किसान का मेडिकल एक्सपेंसेस घट जाएगा। अगर जैविक खेती का उत्पन्न सब हम खाएंगे तो डिजीज बहुत समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात है, ये जो प्रोडक्शन कस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत घट जाएगा। उनको स्वास्थ्य मिलेगा, अर्थ मिलेगा, धर्म भी मिलेगा। धर्म अर्थ एक पते दो काम हो जाएगा। और इसके बाद इसका पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कैसे कम करेंगे, इसको देखना पड़ेगा। कितना नुकसान हो जाता है, इसका संरक्षण प्रणाली को थोड़ा सा साइंटिफिक करने का गाइडेंस मिलेगा, तो इसमें हो जाएगा। बहुत सारा टेक्निक आ गया है, कम पैसा में। फिर उसका मार्केटिंग, ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो इसका मार्केटिंग होगा। आपको एक धारणा है कि अगर जैविक खेती करेंगे तो प्रोडक्शन बहुत घट जाएगा। अगर घट जाएगा भी तो इसको स्वीकारना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ टेक्नोलॉजी हमको अपनाना है। भूमि का कार्बन का नियंत्रण करना, जैसा भस्म का व्यवहार करना, और इस सब पद्धति से हम ये भूमि का सामर्थ्य बढ़ा सकते हैं। सॉइल टेस्टिंग को मैंडेटरी करना, सॉइल का क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है। जैसा कि हम धान लगाते हैं तो धान, फल लगाते हैं तो फल, नहीं, इस भूमि का क्या क्वालिटी है, इसमें क्या सर्टेज है, क्या डेफिशिएंसी है, इसमें क्या पोषक तत्व है, इसका टेस्टिंग करके, इंच इंच भूमि का सॉइल टेस्टिंग करके इसको एक्सपर्ट के द्वारा निर्णय करना चाहिए कि इस भूमि में कौन सा क्रॉप अच्छा होने वाला है। इस अनुसार अगर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, कहाँ अंगूर होगा, कहाँ अनार होगा, कहाँ धान होगा, कहाँ अमृत होगा, सबको ऐसा करके अगर करेंगे तो इसका उत्पादन बढ़ेगा, अच्छा उत्पादन होगा। आज माताओं की खीर में 33% DDT आ जाता है, विष तत्व आ जाता है। इससे बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। अगर ऐसा हम जैविक कृषि करेंगे, विश्वास करके करेंगे, तो इसका परिणाम अच्छा निकलेगा। हिंदुस्तान में आज कई स्थान है जो पूरी तरह जैविक कृषि करते हैं। एक देवला पार्क करके मुंबई में नागपुर के पास है, कानपुर गौशाला है, चकुलिया गौशाला है, तो देखा अच्छा। आप उसका पत्ता को लेकर के सुनो तो आपको मालूम पड़ जाएगा फर्क क्या है। ये के कारण ऐसा, जैविक कृषि के कारण ऐसा। ग्लोरिया करके एक श्री अरविंद आश्रम है पंडिचेरी में, पूरा जैविक खेती और आश्रम का सारा आवश्यकता उससे पूर्ण होता है। इसलिए लोगों में, किसानों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आप ऐसा नवयुवकों का आवश्यकता है। विवेकानंद को किसी ने बोला, स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में आए 1897 में, स्वामी जी, यू आर हैविंग सो मच ऑफ स्पिरिचुअल पावर, व्हाई डोंट यू गेट मदर इंडिया फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल? स्वामी जी properly replied, yes, I can bring freedom to mother India tomorrow only, but where are the men who can keep up this freedom? Man is a wonder, rest will take care of itself. But strong, vigorous, believing young man and sincere to the backbone, 100 such and the world will be revolutionized. Today probably Swamiji would have been dancing with joy seeing so much of young people like you who are ready to serve the motherland at any cost. So you have a responsibility. आजाद भारत का सबसे बड़ी दुख है कि हिंदुस्तान में ज्यादातर लोगों का वो आजादी तत्व का विकास है। इसलिए हम क्या देखते हैं, कोई हाईकोर्ट का जस्टिस बिना टिकट जाते जाते पकड़ा गया और उनका नौकरी गया। Parliamentarians belonging to different parties asking questions for companies as a broker were cut red-handed and were dismembered. Having so much IAS topper looting the nation by 475 crores went into jail. Why this happens? Doctors asking 2 lakh rupees in the operation table. What is this? Nonsense. Because they only know money. Our forefather discovered a very beautiful money cannot fulfill you. And it means money is necessary, but money is not fulfillment. अर्थ के द्वारा सब साधन नहीं हो सकते। इतना होता तो नेपाल का राजवंश क्यों अपने को सब गोली मार करके मार दिया? क्यों आत्महत्या क्यों किया? इतना बड़ा बड़ा IAS अफसर क्यों किया? उड़ीसा में का IAS सुसाइड कर दिया ट्रेन लाइन में, क्यों? वो फुलफिलमेंट नहीं मिला। अचीवमेंट, सक्सेस इज नॉट एवरीथिंग। हमारे पूर्वजों ने इस विषय का गहन अनुसंधान करके मनुष्य का
परिपूर्णता के लिए एक मार्ग दिखाया। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको चतुर्वर्ग सिद्धि कहते हैं। किसान अन्न उत्पन्न करता है, अगर अच्छा किसान को तुम बोलो तुमको कितना रुपया प्रॉफिट होता है साल में, वो बोलेगा खर्चा जा करके मुझे 1 लाख होता। अच्छा तुमको 1 लाख रुपया हम सालाना दे दें, तुम कुछ मत करो, जमीन को छोड़ दो। अच्छा किसान इसको मानेगा नहीं, इनको तृप्ति पैसा से नहीं मिलेगा। वो जो खेती करता है, धान का लहरता हुआ फूल, ये सब देखते देखते उनको परमानंद प्राप्त होता है। अपना पसीना बहा करके भूमि से उत्पन्न करता है अन्न और राष्ट्र को देता है। राष्ट्र का अन्नदाता का यह परिश्रम को हमको सम्मान पूर्वक स्वीकार होना चाहिए। जब कलेक्टर खड़ा होकर के किसान को सीट देगा, तब हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी आया, इसको मानना पड़ेगा। ऐसी स्थिति हमको लाना है। किसान को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार देने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी ने कई प्रकार का कदम किया। भारतीय आज जो किसान के लिए हुआ है, करोड़ों किसानों के लिए व्यवस्था हुआ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इससे कितना % लाभ मिला? क्यों नहीं होता है? राजनीतिक कंसिडरेशन से इसका विचार किया राज्यों ने। कुछ राज्यों से लिस्ट ठीक से नहीं आया, राज्यों तो लिस्ट देता है, जो इसका बेनिफिशियरी होने लायक है वो नहीं मिलता है, जो होने लायक नहीं है उनको मिल जाता है। हमको इस विषय में इंटरवेंट करना है कि ये साइंटिफिकली जैसा प्रत्येक योग्य व्यक्ति को मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें महिला ज्यादा बेनिफिशियरी है, लेकिन ये सबको नहीं मिलता है। कोई बूढ़ी रहता है पॉलिथीन टन करके, वो नहीं मिलता। इसमें हमको इंटरवेंट करना है, योग्य लोगों को अपना अधिकार मिलना चाहिए। ये निर्लज्जता पूर्वक इस दिशा में वास्तुरा लोगों के प्रति अन्याय होता है, इसलिए एक पॉलिसी बना देने से नहीं चलेगा। ग्राउंड में ये कैसे ट्रांसलेट होगा, इसको हमको ध्यान में रखना। श्रमिक श्रमयोगी मानधन योजना, फसल बीमा योजना, सिंचाई योजना, कई प्रकार की योजना किसानों के लिए हो। इसको किसान को कैसा लाभ मिलेगा, इसको देखना चाहिए। यंग एंड एजुकेटेड यूथ शुड लुक फॉरवर्ड। सामान्य जन को अपना जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, सिंचाई योजना, अटल पेंशन योजना, उजाला गैस योजना, सौभाग्य बिजली योजना, हर घर बिजली योजना, हर घर पानी योजना, ये सब व्यवस्था तो हो गया, कुछ मात्रा में होता है, लेकिन कुछ स्थान में इसका उपयुक्त व्यवस्था नहीं हो पाता है। नेपोटिज्म के लिए, पर्यावृत्ति दूषण के लिए, पैसा लालच के लिए नहीं होता है, पॉलिटिकल कंसिडर नहीं होता है। इसको पैन इंडिया कैसे किया जाएगा, इसको भी हमको टेक्नोलॉजी के द्वारा भी इसको निकाला जा सकता है। फिजिकल इंटरवेंशन भी चाहिए, फिजिकल इंटरवेंशन जरूरी है, इसको हमको देखना पड़ेगा। ऐसा ही किसान का मार्केटिंग के लिए एक प्रॉब्लम होता है। किसान अच्छा प्रोडक्ट कैसे बनाएगा और इसको देश विदेश में कैसे ले आ जाएगा, इसके विभिन्न पोर्टल से। इसमें किसान टेक्नोलॉजिकल साउंड नहीं, मैं तो गधा हूं इसमें, आप लोग इसमें शामिल। इसलिए आपको मैं वंदना करता हूं कि आप अपना ज्ञान और अनुभव को किसान का हित के लिए कैसा व्यवहार करेंगे, ये सबसे बड़ी जरूरी है। किसान को कनेक्ट करना मार्केट के साथ, ये बहुत बड़ा जरूरी है। दलालों के द्वारा वो शोषित होता है। आज जो धान की मंडी है ना, पूरे देश में लूटपाट चलता है। उड़ीसा में ज्यादा लूट, हमने तो पकड़ा कई बार, हाँ, इतने लोगों को सस्पेंड किया, लेकिन जो जेल जाना चाहिए वो नहीं होता है, क्योंकि अफसर लोग बेईमान है। मैंने सेक्रेटरी, डायरेक्टर, सारा इनके साथ बार बार चर्चा किया, चिट्ठी दिया, फोन किया, बार बार धमकी देता हूँ, क्या तुम्हारा ये 5G सरकार है, बेईमानों का व्यवस्था चलता है, नहीं सर हम इसको करते हैं, ये करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनका दलाली है और उनको ऊपर से वरदान मिलता है कि इन लोगों ने हमको फंडिंग करते हैं। ऐसा फंडिंग वाला इसको देश को बर्बादी करते हैं। इसलिए आप सबको मेरा निवेदन है कि कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ ये व्यवस्था कैसे चलेगा। इकोनॉमिक्स में प्रिंसिपल है, बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। The opposite is also true. Good money drives bad money out of circulation. अगर सज्जनों का संगठन नहीं होगा तो दुर्जन पावरफुल हो जाएंगे। 2000 साल पहले हमारे देश में एक ग्रेट डिप्लोमेट, राष्ट्र निर्माता आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने बोला, हमें भय नहीं है दुर्जनों की दुष्टता से, हमें भय है सज्जनों की निष्क्रियता से। दुर्योधन, दुशासन द्रौपदी को नंगा करने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, ये सब महावीर प्रतिकार करने का सामर्थ्य होते हुए भी बैठ करके विभीषिकामय दृश्य को देखेंगे, ये आश्चर्य की बात है, दुख की बात है। और इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। द्रौपदी का अपमान का कारण सारा भारत का सर्वनाश हुआ और आज किसान का अपमान होता। इसलिए हमको आगे आना पड़ेगा। ये सर जो सिगरेट की बात करते हैं, सिगरेट जो पीता है रास्ता में, ये हमको भी नुकसान पहुंचाता है। कानून है,
लेकिन कानून तो एक निर्जीव दलील मात्र है। कानून को कौन क्रियान्वित करेगा? सचेतन जागृत जन समाज। हमको क्यों नहीं करना? हम देखते हैं इसको, चले जाते हैं, हम क्यों बोलेंगे? अरे you have no right to create health hazard for me. You can take liquor in your home, but you cannot smoke, because by smoking you are endangering others. You cannot do that. That you have no right. You don't have a right. So we have to protest. अन्याय का सहन करना और अन्याय करना दोनों एक साथ अपराध तत्व है। जो अन्याय करता है, जो अन्याय को सहन करता है, दोनों ही अपराध है। ऐसे ही किसानों के ऊपर जो अन्याय होता है, इसको अभी मुखर प्रतिवाद करना ये हमारा जिम्मेदारी है। हम पराधीन राष्ट्र के प्रजा थे, आज भी ऐसी मानसिकता है। पराधीन राष्ट्र का प्रजा और आजाद देश का नागरिक में एक आकाश पाताल अंतर है। पराधीन राष्ट्र का प्रजा क्या करता है? अपना शासक के ऊपर निर्भर करता है। आज में ट्यूबवेल एक नट चला गया तो ये नट लगाएगा सरकार, हम नहीं करेंगे। ये क्या बात? सरकार क्यों करेगा? इंडस्ट्री करो तो सरकार करो, क्यों तुम नहीं करते? कुछ दिन पहले कल एक बालक आया था विश्वास, बोला अच्छा कोई फूड प्रोसेसिंग प्लांट आपको बालेश्वर में सरकार नहीं करेगा। सरकार क्यों करेगा? तुम करो, तुमको 35% सब्सिडी में दिलवाओ। नहीं, सरकार करने से आपको नौकरी मिलेगा। नहीं, नौकरों का देश से विकास नहीं होगा। तुम करो, तुमको 35% सब्सिडी मिलेगा। तुम ये करो, कोल्ड स्टोरेज करो, तुमको 75% सब्सिडी मिल जाएगी। तुम नहीं करोगे, सरकार करेगा। और सरकार करेगा, तुम खा करके चले जाओगे। सरकार का माल दरिया में डाल, सारा गवर्नमेंट इंडस्ट्री खत्म होगा। वो टैक्स पेयर्स मनी शुड नॉट बी वेस्टेड बाय गवर्नमेंट इंडस्ट्री। जिस देश का राजा व्यापारी, उस देश का जनता भी खा। सरकार नहीं करेगा, तुम करो। इंडस्ट्रियलिस्ट बनो, उद्योगी बनो, एंटरप्रेन्योर बनो। कौन मना करता है? ये एंटरप्रेन्योरशिप स्किल हमको, एग्री एंटरप्रेन्योरशिप की। फिर इसका वैल्यू एडिशन के लिए हम क्या करना चाहिए? गांव में महिला लोग बैठे हैं, क्या सिंघानिया सिल्वी आलू चिप्स करेगा मल्टी मिलियनर कंपनी? बाकी गांव में कोई नहीं कर पाएंगे। इनको प्रशिक्षण दे करके, मार्केट से कनेक्ट करके उनको महिला SHG को कर सकते हैं, आलू का चिप्स बना सकते हैं, टमाटो का सॉस बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं। 5 रुपया में गांव में रॉ मैंगो मिलता है, 250 रुपया में अचार बेचा जाता है। आलू का चिप्स बना देने से आलू का 5 रुपया केजी, आलू चिप्स 500 रुपया केजी। अचार, जेली, जूस, जाम, बड़ी, पापड़ सब बना सकते हैं। हैंडमेड पेपर बना सकते हैं। इसको किसान को अपना सामान का वैल्यू एडिशन करने के लिए मदद मिलेगी। और सस्ते पद्धति से कैसे किसान का खाद्यान्न का संरक्षण होगा, उचित दाम कैसे मिलेगा, वैल्यू एडिशन कैसे होगा, ये सारा विषय को इंटीग्रेट करना चाहिए। और इस विषय को इंटीग्रेट करने के लिए टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग होना चाहिए, ये आप सब कर सकते हैं। इसलिए आपको किसान के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। किसान के पास भी बहुत ज्ञान और अनुभव है, वो बेचारा असहाय हो जाता है परिस्थिति के कारण। अगर आपका ब्रेन और उनका सामर्थ्य को इंटीग्रेट किया जाएगा तो हिंदुस्तान का कायाकल्प हो जाएगा। मैं फिर से कहता हूं कि रासायनिक सार को बिल्कुल वर्जन करना चाहिए, प्राकृतिक खेती को बल देना चाहिए, और जितना सारा सामान बाहर में पड़ा हुआ है, इससे ही हम हमारा डेफिशिएंसी को पूर्ण कर सकते हैं। बाकी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट भी, सपोज शुगर इंडस्ट्री का वेस्ट, हम इसको ग्रीन मैन्योर में रूपांतरित कर सकते हैं, बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा कई प्रकार के हम कर सकते हैं। हमारा खाद और कीटनाशक का परिमाण हम बढ़ा सकते हैं। जैसे गोमूत्र से हम कई प्रकार का पद्धति, जैसे सप्तपर्णी गोमूत्र कीटनाशक, एक भी पेस्टिसाइड ड्रॉप नहीं देना चाहिए, इसमें बड़ा प्रभावी कीटनाशक बनता है। 7 प्रकार का पत्ता, नीम, तुलसी, अर्क और ये सीताफल, बबूरी, ये सबको लेकर के, करंज सबको लेकर के, लहसुन लेकर के इसको अच्छा से बना सकते हैं। ऐसा बनाते हैं कई स्थान में, और इसके कारण पोषक तत्व खाद्यान्न में आ जाएगा, विषय तत्व नहीं आएगा, आरोग्य मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, और खाद्यान्न का भी बढ़ोतरी होगा, और इस उत्पादन का भी बाजार में कीमत 2-3 गुना होगा। इसलिए हमको इस दिशा में कुछ काम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ, मुझे तो टेक्नोलॉजी मालूम नहीं, मैं ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टाइज रखते हैं, इसलिए आप इसका प्रयोग करके धरातल पर इसको कैसे उतारा जाएगा, इस दिशा में मेरे को जानकर आनंद हुआ कि आपने इतनी सारा मैगजीन्स पब्लिश करते हैं, इतनी सारा लैंग्वेज में आपका, और ये एग्री जर्नलिज्म एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। इसलिए आप पैसा के चक्कर में नहीं गए, ये बहुत बढ़िया कदम है। पैसा उत्पादन करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा है चतुर्हस्त समाहार सहस्त्रहस्त वित्ता, 4 हाथ में पैसा उपार्जन करो, इसको गलत नहीं मानते, लेकिन सहस्त्र हाथ में इसको वितरण करो। और कैसा करोगे पैसा? धर्म समर्थित मार्ग में, न्यायपूर्ण मार्ग में,
अनुचित उपाय में नहीं, घुस लेकर के नहीं, अपनी शरण करके लिए नहीं, उचित मार्ग में पैसा जितने पारो कमाओ, और उचित मार्ग में पैसा कमाने से ये पैसा तुमको लाभ देगा। क्या होगा? धर्म मार्ग में अर्थ उपार्जन करो, और इससे तुम्हारा कामना की पूर्ति करो धर्म पूर्ण मार्ग में, और ये तुमको मोक्ष के लिए ले जाएगा। लेकिन अनुचित मार्ग में उपार्जन करता हुआ पैसा तुमको बंधन में डालेगा, विनाश के कगार पर खड़ा करेगा। इसलिए ये 4 पुरुषार्थ के द्वारा ही मनुष्य जीवन का पूर्णता होता है। Fulfillment and success are 2 different things. A fulfilled man will not commit suicide, will not come under depression. So you should lead a very happy, prosperous life. प्रेरणा का स्रोत बनेगा आपका जीवन, राष्ट्र को प्रेरित करेगा और युवा को सर्वदा प्रेरणा का स्रोत बनेगा। आंखों में चमक, नया सपना, दुनिया को परिवर्तन करने का शौक, बाहु में सिंह का अमीर विक्रम, हृदय में सारा दुनिया का दुख को धारण करने का सामर्थ्य, सारा दुनिया का बोझ को ढोने के लिए करने में सामर्थ्य। ऐसा नवयुवक चाहिए जो राष्ट्र के लिए पर दुख कातर, दूसरों के दुख में द्रवित हृदय और असंभव का महानायक बनने वाला नवयुवक ही देश का भाग्य को परिवर्तन कर सकता। जो सागर से टकराता है उसको चट्टान कहते हैं, जो चट्टान से टकराता है उसको तूफान कहते हैं, तूफान से टकराता है इसको जवान कहते हैं। और ऐसा नवयुवक ही भारत का भाग्य का परिवर्तन कर सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इतिहास का लेखन नहीं करेंगे, इतिहास का प्रवाह में गड्ढा लिखावट बह नहीं जाएंगे। इतिहास का परिवर्तन करने के लिए आप लोग पैदा हुए हैं। नेताजी सुभाष कहते थे, लेट अस क्रिएट हिस्ट्री, लेट अस राइट इट, वी डोंट हैव एनी टाइम टू राइट हिस्ट्री। सो इतिहास निर्माण करने वाला असंभव का महानायक भारत का भविष्य मेरे सामने बैठे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है आप भारत को इस गर्व स्थान पर ले जाएंगे। मोदी जी का जो सपना भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना, इसको ले जाएंगे। ये सिर्फ कंप्यूटर के द्वारा नहीं होगा, इसमें कंप्यूटर का एक्सपर्टाइज भी देखना पड़ेगा, और किसानों का जो त्याग, जो बलिदान, इसको भी देखना पड़ेगा, और इस सबको इंटीग्रेट करना है। और जब आप इंटीग्रेट करेंगे, शिक्षित और अनपढ़ समाज में जो दूरी, इसको दूर करना और उनके प्रति कृतज्ञता की भाव से आप जब सेवा करने लगेंगे तो हिंदुस्तान का भाग्य बदलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदुस्तान का भाग्य आकाश में आप सब नक्षत्र की भांति चमकेंगे और इतिहास में बोलो भारत हमें मालूम है टाइम हो रहा है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन हमारा टीम आपसे पूछना चाहता है। हाँ, टाइम हो गया, पूछ लीजिए जल्दी जल्दी जल्दी। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विनीता है। मैं क्या नाम? विनीता। विनीता। यस सर, मैं एडिटोरियल टीम से हूँ। सर मेरा आपसे सवाल था कि आप अपने सिंप्लिसिटी और हम्बलनेस के लिए जाने जाते हैं, तो क्या आप ये अपनी पर्सनालिटी का एस्पेक्ट इंडियन पॉलिटिक्स में कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं? और ये देखो मैं सिंपल रहने के लिए अच्छा सर यही था कि सर आप जो ये पॉलिटिक्स में कैसे मेंटेन करते हैं इस चीज़ को, और क्या ये कभी एक अड़ाव की तरह आपकी करियर में आया है क्या? नहीं, मैं क्या है, it doesn't cost me anything. It is my habit. I have not to strive hard to maintain my simplicity. Effortlessly I am simple, and इसको प्रचार मैंने भी नहीं किया, कुछ कोशिश भी नहीं किया। कभी कभी ये पत्रकार लोग जाते हैं, जब किसी का प्रचार हो जाता है ना, जब गांव में किसी को मालूम नहीं है तो मेरे से भी ज़्यादा सिंपल लोग बहुत है, परंतु मैं एमपी बन गया। और ये लोग क्या करते हैं, मैं जब नहाता हूँ इसको जाकर फोटो इसको मैंने सेट करके सोशल मीडिया में छोड़ा था। जब मैं एक बार बोला क्या मेरे जीवन में कोई प्राइवेसी नहीं, मैं टॉयलेट जा रहा था
तो हमारे घर में घुस करके टहल, मैंने बोला भाई मैं तो एमएलए था, अरे भाई एमएलए हो कि राजा हो, इनका भी एक प्राइवेट लाइफ होता है, ये क्या बात है। तो मैं जो देखा चारों तरफ घेर करके मोबाइल में इधर रिकॉर्ड करते हैं, तो मैंने भागा दूर से दूर। तुम नहीं जाके, मैंने बोला बंद करो इस फार्स, तुम नहीं बंद करोगे तो मैं चला जाऊंगा, ना नहीं जाऊंगा। तो फिर बंद कर दिया। फिर मैं जब स्नान करने लगा, फिर मैं भागा और जाकर के तालाब में पहुंचा। तब मैं सोचा वो नहीं आए हैं, लेकिन फिर 5 मिनट बाद देखा वो फिर आ गए। ये हमारे ऊपर एक अत्याचार है, ये अत्याचार का प्रचार हो गया। संभवतः इसके कारण इतना भीड़ हुआ मेरे पास, लेकिन ये प्रचार करने वाला से मेरे से कोई कनेक्शन नहीं है, ये अलग से किया, मैंने कोई जानबूझकर ऐसा नहीं किया। नमस्कार सर, मेरा नाम दीक्षा है, एडिटोरियल टीम से। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको उड़ीसा में मोदी के नाम से जाना जाता है, तो सर आपका क्या कहना है इस पर? देखो ये भी प्रचार पत्रकारों ने किया। मैंने कभी अपने को उड़ीसा का मोदी नहीं कहा, कोई लोग अरे उड़ीसा का मोदी, कभी कभी उड़ीसा का गांधी। एक बार हमारे बड़ा राष्ट्रीय नेता मेरे सामने अमित शाह जी ने बोला कि ये उड़ीसा का गांधी है। मैंने सोचा कि तो मोदी का ये कैसा आया मेरे को मालूम नहीं है, कैसा इसका इमरजेंसी हुआ मेरे को मालूम नहीं है। जैसा उस बालिका ने बोली थी कि इसको कैसे मेंटेन करते हैं, मैं सोचता हूँ कि कम्प्लेक्सिटी मेंटेन करने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। मैं कभी कभी चलता हूँ, मेरा फ्रेंड्स चलते हैं, बोलते थोड़ा धीरे चलो भाई, तुम तो बिल्कुल कुछ स्टाइल मालूम नहीं है। मैंने बोला धीरे चलने के लिए मुझे साधना करना पड़ेगा, लेकिन जोर चलना मेरा स्वभाव है, मेरे को कोशिश करना पड़ेगा स्लोली चलने की। Suppose God wanted man to be simple, otherwise He could have given us a very beautiful skin like He has given it to the deer, to the leopards, to the snakes, to the peacocks. He could have given a very artistic skin. He did not give us. God wanted man to be simple, but to remain simple is not an attempt for me. It is effortlessly I am simple, but I have to start attempt in order to be very complex. Why should I try? हेलो सर, मेरा नाम स्तुति है। स्तुति हाँ, तुमको स्तुति करना पड़ेगा। सर आप कल प्रेसिडेंट से मिले, तो सर आपका क्या मोटिव था? क्या सर मोटिव क्या था सर, आप कल प्रेसिडेंट से मुर्मू जी से मिले थे? मोटिव था ये क्या है, वो मेरा एरिया से बिलोंग करते हैं और वो जिला का प्रेसिडेंट से मैं प्रभारी था, इसलिए हमारा अंदर में मित्रता का भाव है, बहुत घनिष्ठता है, मैं उनको सम्मान करता हूँ। और पहले से बहुत मिले हैं इससे पहले, लेकिन प्रेसिडेंट बन गए, इसलिए एक सौजन्यमूलक साक्षात है। और राष्ट्रपति भवन में कुछ विषय में बात किया और मेरे साथ और कुछ मित्र भी गए थे। दैट इज नॉट नोन टू योर रिपोर्टर्स। आई टोल्ड दैट आई डोंट know anything ABC of social media, Facebook, of technology, that is not known to many of my reporters. So सर इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था? नो पॉलिटिकल एजेंडा। क्या पॉलिटिकल एजेंडा राष्ट्रपति के साथ हो? नमस्कार सर, तो मेरा नाम अश्विनी वानखेड़े। अश्विनी वानखेड़े। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे देश के जो अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला हैं जो चुनकर के आई है, तो इन पर आपका क्या मत है? एक महिला आदिवासी जो है राष्ट्रपति बनी है। सेकंड जो हमारी कृषि है, तो एक किसान के नाम से हम सभी के आंखों के सामने किसान जब जैसे हम कहते हैं तो पुरुष की छवि आती है, तो महिला की क्या किसान के नाम से एक पुरुष की छवि हमारे सामने आती है, तो कृषि में महिलाओं की क्या भागीदारी होनी चाहिए? मुर्मू राष्ट्रपति बनना ये अपने आप में ऐतिहासिक घटना है। सारा विश्व का इतिहास आप देखो, अमेरिका आज तक महिला राष्ट्रपति नहीं किया, हमने दो बार। भारत में लोकतंत्र अधिक शक्तिशाली है, ये हमारा नस नस में है। और माननीय मोदी जी का इस सिलेक्शन के कारण इतना लोगों को लोकतंत्र का ये सर्वोच्च विकास भारत में हुआ है, ये जनता का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। मैंने कल माननीय राष्ट्रपति जी बोला कि मैं उड़ीसा से कुछ स्टूडेंट्स को ला करके इधर घुमाना चाहता हूँ। मैं गवर्नर के पास भी लेके जाता हूँ, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, जितना श्रेष्ठ आदमी गाँव से सामान्य लोगों को लेकर के जाता हूँ, बच्चों को लेकर के जाता हूँ। और कभी कभी उनका स्टाफ जो रुकावट करता है, मैं गवर्नर को कंप्लेन करके तुरंत लेकर, तो उनका कॉन्फिडेंस, जब गवर्नर उनके साथ हाथ मिलाते हैं, साथ में बैठकर फोटो लेते हैं, तो एक गाँव में एक पितृहीन आदिवासी बालक का कितना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा।
मेरा जीवन सिर्फ मजदूरी के लिए नहीं, मैं भी कुछ बड़ा हो सकता हूँ, ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सेल्फ ट्रस्ट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। स्वामी विवेकानंद कहते थे, faith in yourself, faith in God. If you have faith in the 330 millions of your mythological gods and goddesses, and all the gods and goddesses which foreigners have introduced into your midst, and still have no faith in your own self, there is no salvation for you. And what is the history of this world? कुछ आत्मविश्वासी लोगों का जीवन कहानी इतिहास, 1000 करोड़ लोगों का इतिहास नहीं है। वो गलत हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। ये हिटलर भी हो सकता है, नेपोलियन भी हो सकता है, महात्मा गांधी और श्री अरविंद भी हो सकता है, नेताजी सुभाष भी हो सकता है। लेकिन जिन लोगों ने इतिहास निर्माण किया वो आत्मविश्वासी लोगों ने किया। इसलिए लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना आज सबसे बड़ी है। मेरा अगर कुछ नहीं होगा, ऐसा लोगों का ज्यादातर होना अच्छा नहीं है। मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी विजयी बन सकता हूँ, मैं भी इतिहास का परिवर्तन कर सकता हूँ, ऐसा भाव आएगा। मैंने उनको निवेदन किया, मैं 100-200 हमारे स्टूडेंट्स को उड़ीसा में ला करके इधर घुमाऊंगा और आपसे बात करके चलूंगा। इसलिए द्रौपदी मुर्मू, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हमारे राष्ट्रपति बने, ये सारा राष्ट्र का एक गौरव की बात है। और मैं देखता हूँ इस सरकार में ऐसा होता है, अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाना, और रामनाथ कोविंद भी सामान्य परिवार से आए थे, और द्रौपदी मुर्मू मैंने देखा गरीब आदिवासी परिवार से वो आकर के फिर राज्यपाल बने, विधायक बने, फिर राष्ट्रपति बने। इससे सारा देश में जनता में एक विश्वास आया है कि वंशवादी राजनीति अब नहीं चलेगा, राजा के पुत्र राजा बनेगा कि नहीं चलेगा। राजतंत्र, लोकतंत्र, स्वैरतंत्र क्या बताता है कि महारानी की पेट से राजा निकलता है, लेकिन गणतंत्र बताता है कि वोट की पेटिका से राजा निकलेगा। और आज ये प्रमाणित हो गया है कि सामान्य जनता का भी सर्वोच्च आसन पर अधिकार सिद्ध हो गया। I've been just told to give you vote of thanks, but I know no words would be enough for you, whatever brief interaction that I had with you. But two things I want to share with you which happened here only. One, when you were watching your AV, you were listening to your story, sir. Not even once I felt I'm listening to a politician. It was like a story of a saint, sant. It was not of a politician at all, sir. This is the first time I felt कि AV में से एक political नहीं, एक saint की story निकल के आई. And second example that you gave, sir, light went off twice. हम लोगों ने शायद सुनना बंद कर दिया. Not even a fraction of a second you stopped. And I think it's an honor for us, not only to have you here, sir. I think it's an honor to have you in the country, in the era where you are born and we are here. We have not, till date, we have heard about Mr. Gandhi's speed of walking and talking and Mr. Shastriji's simplicity. Today we are thankful that we could get to see this in your form, sir. We are really thankful. There is no vote of thanks to you, sir. All I can say is it's a vote of request. Please keep coming and please keep interacting and please keep motivating our journalists so that they be there on the right tracks. Thank you so very much, sir.